अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और उसकी वजह मैं आपको बतलाना चाहूंगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है मोहम्मद सुलेमान, जो कि मिस्र का रहने वाला है। हाल ही में बोल्डर कोलोराडो में इसराइलियों की एक रैली हो रही थी, जिस पर इसने मोलोटोव कॉकटेल्स के साथ यानी आग के साथ हमला किया था, जिसमें एक 88 साल के बुजुर्ग जो हैं वो घायल हो गए थे। ट्रंप सामने आते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं 12 देशों पर अब पाबंदी लगा रहा हूं। यह अपने आप में एक ऐसा फैसला है दोस्तों, यह बतला रहा है कि ट्रंप किस तरह से सोच रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अपनी देश की रक्षा करने का अधिकार सभी को है, मुद्दा वो नहीं है। अब कल्पना कीजिए, अगर इसी तरह से किसी सिरफिरे ने कोई हमला कर दिया और अगर उसके तार भारत से जुड़ रहे हो, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रवेश पर पाबंदी लगा देंगे? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर हम किसी भी ऐसे देश से खुलेआम माइग्रेशन की इजाजत नहीं दे सकते जहां से आने वाले लोगों की ठीक से जांच और स्क्रीनिंग करना मुमकिन ना हो। इसीलिए आज मैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं, जिसमें यमन, सोमालिया, हाइती, लिबिया और कई अन्य देशों पर ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है। सुनिए इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एक तरफ 12 देशों पर प्रतिबंध और यही नहीं, कई देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। आज ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, पाकिस्तान जिसके तार हर बड़े आतंकवादी हमले से जुड़ते हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन का पाया जाना हो, चाहे भारत पर हर बड़ा आतंकवादी हमला, क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगाएंगे? मैं आज भारत और पाकिस्तान का मुद्दा आपके सामने क्यों ला रहा हूं? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है उसमें साफ तौर पर दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं वो 12 देश जिन पर पाबंदी लगाई गई है। आपकी स्क्रीन पर अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हाइती, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया गया है। वो कौन कौन से देश हैं? आपकी स्क्रीन पर बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला।
आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। यह ट्रंप की जिद थी। वो अक्सर जो भी फैसले उठाते हैं जिद के चलते उठाते हैं, मगर यह जो उन्होंने फैसला लिया है उसकी कृपा इस व्यक्ति की वजह से है जिसका नाम है मोहम्मद सोलेमान, जो कि मिस्र का रहने वाला है। इसने आतंकवादी हमला न सिर्फ किया बल्कि अब उसे और उसके परिवार को वापस भेजा जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस व्यक्ति ने अमेरिका में शरण ली थी। जी हां, मिस्र में वहां के शासन से बचने के लिए शरण ली थी और अब उसने अमेरिका के अंदर एक बड़ा हमला कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे लोग न सिर्फ अपनी कौम, अपने देश, बल्कि यहां तो करीब 12 देशों के लिए उन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी। व्हाइट हाउस इसकी क्या वजह बता रहा है, गौर किया जाए। व्हाइट हाउस नए प्रेसिडेंट के ट्रैवल बैन को ऐसे पेश कर रहा है जैसे उन्होंने चुनावी वादा पूरा कर लिया हो। अमेरिका को उन खतरनाक विदेशी लोगों से बचाना है जो हमारे देश में आकर नुकसान पहुंचाना चाहते हो। व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एबिगेल जैक्सन ने एक्स पर लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप अपना वादा निभा रहे हैं कि अमेरिकियों को उन खतरनाक विदेशी लोगों से बचाया जाए जो हमारे देश में आकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये ट्रैवल पाबंदियां समझदारी भरी हैं और देश विशेष पर आधारित है। उन देशों पर जहां वेरिफिकेशन की सही व्यवस्था नहीं है, वीजा ओवरस्टे बहुत ज्यादा है या फिर पहचान और खतरे से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं करते। दोस्तों, एक बार फिर देखिए इस शख्स को जिसका नाम है मोहम्मद सोलेमान। इसी व्यक्ति ने जो है वो एक इस्राएली रैली पर हमला किया था और यहां पर व्हाइट हाउस कह रहा है 6 one-way tickets for Mohammad's wife and 5 kids, final boarding call coming soon। यहां पर आप देख रहे हैं मोहम्मद सोलेमान जिसने एक इस्राएली रैली पर हमला किया था और अब ना सिर्फ उसे बल्कि उसके बच्चों और उसकी बीवी को वापस उसके देश भेजा जा रहा है जहां अब उसे फांसी लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति मिस्र से भागकर यहां अमेरिका आया था, यहां पर शरण ले रहा था, मगर यहां पर आकर क्या किया? एक हमले को अंजाम दे दिया। और इस बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तब आपको पता चलेगा ट्रंप के इस फैसले के पीछे के लॉजिक के बारे में। मगर स्वाभाविक सी बात है, इस फैसले से कई मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर अब मैं बताने वाला हूं मोहम्मद सोलेमान के बारे में। कोलोराडो के बोल्डर शहर में 1 जून 2025 को एक शांतिपूर्ण प्रो इजराइल रैली पर हमला हुआ जिसमें 45 वर्षीय मिस्र के नागरिक मोहम्मद सबरी सोलेमान ने मोलोटोव कॉकटेल और एक अस्थायी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया था। इस हमले में 15 लोग घायल हुए जिनमें एक 88 वर्षीय हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी शामिल थी। सोलेमान ने हमला रन फॉर देयर लाइव्स नामक समूह द्वारा आयोजित एक रैली पर किया जो गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इस्राएली नागरिकों की रिहाई के समर्थन में थी। हमले के दौरान सोलेमान ने फ्री पैलेस्टाइन जैसे नारे लगाए और बाद में पुलिस को बताया कि उसने ज़ायनिस्ट लोगों को निशाना बनाया क्योंकि वो उन्हें अपने देश फलस्तीन पर कब्जा करने वाला मानता था। सोलेमान 2022 को एक टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आया था जो 2023 में समाप्त हो गया था। उसने शरण के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका वर्क परमिट 2025 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। हमले के बाद सोलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर संघीय घृणा अपराध और राज्य स्तरीय हत्या के प्रयास सहित 42 आरोप लगाए गए हैं। यदि सभी आरोपों में वो दोषी पाया जाता है तो उसे 624 साल तक की सजा मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अगर सजा नहीं मिली तो वो वापस मिस्र जाएगा। मगर उसके परिवार के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों,
कुछ मानवाधिकार संगठनों ने दखल दिया है और कहा है कि अगर वाइफ को और बच्चों को वापस भेजा जाएगा तो उनकी जान पर खतरा आ सकता है। इस बारे में CNN क्या कह रहा है, इस पर गौर किया जाए। सुलेमान की पत्नी और 5 बच्चों को भी अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया है, लेकिन एक संघीय न्यायाधीश ने उनके निर्वासन पर अस्थायी रोक लगा दी ताकि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह घटना अमेरिका में बढ़ते यहूदी विरोधी हमलों के चलते लिया गया है। मगर एक बार फिर उन 12 देशों पर भी निगाह डाली जाए जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, जिनके नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इनमें से एक है अफगानिस्तान। इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जो अमेरिका से नफरत करता है, मगर वो बात नहीं है। याद कीजिएगा, जब तालिबान से अमेरिका युद्ध कर रहा था तो कई आम अफगान निवासियों ने अमेरिका की मदद की थी, मगर अब अमेरिका उन्हें भूल गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश है ना, उसकी आत्मा में मानो एक दरार है। वो अपने मतलब से काम करता है। जी हां, उसका मतलब होगा तो आपको सिराखों पर बिठाएगा, और अगर उसका मतलब नहीं तो आपको त्याग दिया जाएगा, जैसे अफगानिस्तान के नागरिकों को त्याग दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान को बैन क्यों किया गया? अफगानिस्तान के लोगों को बैन करने का असर उन अफगानों पर पड़ सकता है जो पिछले 20 सालों से अमेरिका के साथ मिलकर वहां काम कर चुके हैं। पहले ही हजारों अफगानी मुश्किल में फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रंप सरकार के पुराने ऑर्डर ने अमेरिका का रेफ्यूजी प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था और अफगान स्पेशलिस्ट इमिग्रेंट वीजा यानी SIV वालों की फ्लाइट्स के लिए मिलने वाली विदेशी मदद भी रोक दी थी। मगर इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। याद कीजिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो ताना किसको देते हैं? कनाडा को ताना देते हैं। वो कनाडा जिसके बारे में वो कहते हैं कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए। वो कनाडा जो अमेरिका का मित्र है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करते हैं। इलॉन मस्क, वो ब्रिटेन के अंदर अफरा तफरी और अराजकता मचाने की कोशिश करते हैं, और ये तमाम देश तो उनके मित्र देश हुआ करते थे, फिर भी ये सब किया जा रहा था। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला अहंकार और दूसरा मतिभ्रष्ट हो जाना, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब अहंकार हो जाता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव में है, तो जाहिर सी बात है अगला कदम होता है मतिभ्रष्ट होना। मगर ऐसे जो दबंग हैं, ऐसे दादा जो है ना, इनके सामने झुकना नहीं चाहिए। जैसे भाजपा झुक गई, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का अपमान सहते रहे मगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं कहा। हमारे विदेश मंत्री ने कुछ नहीं कहा। जवाब देना होगा। जवाब दोगे तब सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।